Good evening to everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Sorry for 2 minutes late, 2 or 5 minutes. I am sorry because the net was not connecting. Sorry. So I guess new batch, right? Yes, sir. First class, everyone. Yes, sir. चलिए. Yes, sir. So enjoying your Corona vacations. चलिए. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे सब लोग अपने बारे में. कौन कहाँ से है और साथ ही साथ अपना 10th के मार्क्स भी अगर मुझे बताते जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड आई एम गोइंग टू टेक योर फिजिक्स क्लास. ओके. So I have 10 plus years of experience, right? So I am your physics faculty here at Calvin, and I will just I'll do one thing. I'll just name them, okay, from the very starting, and give me a brief introduction about yourself. What's your good name? Where are you from, basically, and what was your 10th class percentage? Okay. So let's start with Prathar Chauhan. Prathar, please. ठीक है. Prathar is gone somewhere. Gagan, can you please introduce yourself? Hello, myself Akshay Bhardwaj from Bhajanpur, Delhi. I scored 92% in class 10th mark. वेरी गुड. आपने गुड नेम क्या बताया? गगन नाम है या कुछ और नाम है? My brother name is Gagan Bhardwaj. I connected from his ID. ओके ओके. और व्हाट्स योर गुड नेम? My name Akshit Bhardwaj. ओके. पूनम. पूनम प्रसाद. Hello everyone. Hello sir. My name is Harshita Prasad and I score 85%, like 86% in my 10th examination. ओके. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi. दिल्ली. नहीं, वेयर इन दिल्ली? I'm from Harit Vihar, Sant Nagar. ओके. that's not bad. चलिए नेक्स्ट. अविष्का जायसवाल. Hi, sir. I am Aviskar Jaiswal from Varanasi. ओके. I score 83.4% in 10th examination. ओके. ओके. आकिफ फिरदौस. Hello sir, my name is Akif Firdos. I am from Chanbag. My 10th result is 82%. ओके. वेरी नाइस. अखिल सिंह. I guess Akhil is not able to speak right now. Akhila Lohitakshan. Hello everyone. Good evening, sir. Yes. I scored 93% in 10th. Is this your good name only, Akhila? Akhila Lohidakshan. It's my father's Lohidakshan. name. Where are you from? Lohidakshan. Okay. I am from Gazipur. Gazipur. Sorry? Gazipur. Okay. Okay, very nice. Amit Tiwari. Sir, my name is Amit. I scored 85% in 10th Are you class. from? Sasilampur, Very Delhi. nice. Okay. Ananta Sayed. I know this name. I have heard this name somewhere. So yes, sir. Where? I was in previous batch. Okay, and then you rejoined this batch, right? बीच में मिस Yes, किया. sir. Why? What was the reason of discontinuing? क्या हो गया? बीच में कैसे गैप हो गया? सर मुझे लगा मतलब जैसे पीछे का जो भी कोर्स हुआ है ना वो अभी इतनी परफेक्शन से नहीं हुआ और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो मुझे लगा एक बार शुरू से करूं रिवीजन वगैरह तो ज़्यादा सही रहेगा. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से. इसका सर मतलब आपकी पहली बार आवाज़ हमने नहीं आ रही. रेगुलरिटी मेंटेन. मैंने कहा इसका मतलब आपकी पहली बार में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हुई. सर नोट्स सर वगैरह यू का आर मेंटेन नहीं नॉट किया एबल आपने. टू मी. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके अनंता सर अब आ रही है। आपके ओके देन नो प्रॉब्लम। तो अनंता देखो भाई, आपने जो पिछली बार कुछ मिस्टेक्स की होंगी उनको इस बार आपको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं आपने नोट्स ओके सर। रेगुलर आपने डेली बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स हम क्लास में करते हैं उनको आपने घर पे दोबारा से सॉल्व करना होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज जरूर करके आना होता है, और जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या डीपीपी आपको मिलती हैं वो आपको सॉल्व करनी होती है, ठीक है। ओके सर। अगर सर आप आई हैव सिमिलर, स्कोर्ड 95% इन वेरी गुड 10th। वेरी गुड। चलिए, और कौन रह गया था? अनुराग वशिष्ठ। Hello, my name is Anurag Vasisht. I am from Ashwira, Delhi. I scored 88%. Okay. ओके वेरी नाइस। चाहल तोमर। Good evening, sir. I am Chehal गुड Tomar इवनिंग। from Yamuna Vihar, and I'm not satisfied with my 10th result. It was not good enough. Okay, so what was the exact number which you are not satisfied with? So 75. 75. Even I am not satisfied. Okay, so make sure whatever mistakes were done, it should not be repeated. Okay, Yes. and make sure you be in regular, and you will basically cover whatever left, right? Whatever it was left and whatever you are not satisfied with, आप अपने efforts और जो भी आपने effort डाले उनसे अगर आप satisfied नहीं हैं, make sure अब आप दोबारा से उसी तरीके का regret मन में ना रखें, इसलिए साथ ही साथ अपने efforts को maintain करके चलें। I hope Okay, sir. आप काफी अच्छा करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज गगन सिंह। Gagan Singh, can you hear me? I guess Good some evening, network sir. gone here. हाँ जी। My name is Satyam Singh. I am from Delhi. Good evening, sir. Okay. Although you are not very properly audible. Okay then, no issue. Let's move on to the Habiba Khan. Yes, my name is Habiba Khan. I scored 75%. Okay. Again, I'm sorry, but you are not properly audible. Maybe some network glitches was there. No issue. We will be introduced with time. Don't worry. I have got the basic idea. Next is Gautam Agarwal. Gautam? Anyone can hear to Gautam? I guess no. Let's move on to the next candidate. He's Harsh Sharma. Good evening, sir. Sir, I am from Delhi. I have scored 75% in 10th class, and I हाँ am not जी, satisfied with my Delhi. percentage because of a major road accident happened to me. Okay, okay. All good now? Yes, sir. Now it's fine. I was Okay, on bed very rest nice. from 6 months, so I was not able to even give the exams, but I gave the exams, so the percentage was that much down. Okay, okay. No issue, no issue. Where are you from in Delhi? Sir, IP extension, IP extension. Mandavli. Okay. Okay, okay, okay. Got it, got it. Ishika Sethia. Hello, sir. My name is Ishita Zethia. I am from Delhi, and my 10th Where in percentage Delhi? is 25%. Okay. Where in Delhi? Sir, Shahadra. Shahad. Okay, very nice. Ishita Jindal. Yes, sir. My name is Ishita Jindal, and I am from Vaishali, Ghaziabad, and I have scored 93% in 10th. Very good, very nice. Karuna Rajawat. Good evening, sir. My name is Karuna Rajawat. I have scored 82% in 10th, and I am from Bhajanpura, Delhi. Okay, okay. Muskan Singh. Sir, my name is Muskan Singh. I am from Bijpuri, Delhi, and I scored 72% in 10th. Okay, very nice. Naina Sain.
प्रखर चौहान, once again. Yes, sir. हाँ जी, हो गया क्या आपका इंट्रोडक्शन? So you are not audible. I am not audible. I guess I am audible to everyone. Prakhar. So there might be some network issue from your side, so please look into it, or you can rejoin. See, whenever there is a issue with audible sound or maybe some blurriness in the screen, ठीक है, just make sure अगर बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है. वैसे मैं आपको बताऊं 99% केसेस में जब भी स्क्रीन ब्लर होगा मुझे पता चल जाएगा. I will get the message कि सर ये स्क्रीन ब्लर हो रहा है, so you don't have to worry about it. अगर वो चीज मेरे को मालूम है, मेरी तरफ से क्लियर आ रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ बाकी बच्चों के साथ. अगर वो कई बच्चों को क्लियर आ रहा होता है, दैट मींस द प्रॉब्लम ऑन द नेटवर्क इज ऑन योर साइड. तो कभी आप हमेशा मेक श्योर कि आप बेस्ट नेटवर्क में बैठे, ऐसी लोकेशन जहाँ पे बेस्ट नेटवर्क आपको मिलता हो. दूसरा, रिज्वाइन कर दिया करें, तुरंत की तुरंत उसको लीव करके तुरंत आप रिज्वाइन कर दिया करें. राइट, कई बार जैसे मेरे एंड पे कभी कभी हो जाता है कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट नेटवर्क इशू होता है या मेरी तरफ से स्क्रीन ब्लर होता है या साउंड ऑडिबल नहीं होता है, मुझे पता चल जाता है. तो व्हाट आई डू बेसिकली, आई रीजॉइन, आई जस्ट लीव द मीटिंग एंड जस्ट रीजॉइन इट अगेन. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. कभी कभी आपके एंड से होता है, कभी कभी मेरे एंड से भी हो जाता है, बट मेरे एंड से होता है, मैं आपको बताता हूँ 99% केसेस में मुझे पता चल जाता है. ठीक है, सो जब भी मुझे पता चल जाता है, आई जस्ट डू दिस स्टेप. ठीक है, और अगर वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब देयर इज हाई चांसेस कि इट इज हैपनिंग ऑन योर साइड. ठीक है, वरना आपको जो इशू आएगा वो काफी लोगों को, क्या सबको आएगा. अगर मेरे एंड पे इशू होता है तो सबको आता है, वो तुरंत सारे एक साथ बोलोगे आप. इफ नोबडी इज कंप्लेनिंग दैट मींस समवेयर द इशू इज ऑन योर साइड. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जब भी मुझे पता चलता है तो मैं रिजॉइन करके उसको, मैक्सिमम टाइम रिजॉइन करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. सो इवन यू कैन ट्राई दैट. आपकी पहली क्लास है तो ये थोड़ा सा आपको हैंडी रहेगा, बिकॉज नेटवर्क इश्यूज रहेंगे कोई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज राठौर. Hello, sir. I scored 78% and I am from Karawan Nagar, Delhi. What's your good name? My name Darshan Rathor. Darshan Rathor, very good. Okay, Prem Prasad. Good evening, sir. My name is Prem Prasad and I am from Kalyanpuri, Delhi, and I scored 86%. Okay, very nice. Ronak, क्या बात है? It's order kind of thing. Ronak. Hello, sir. My name is Ronak and I am from Nandagiri, Delhi, and I scored 70% in 10th. Okay. Shubham, 11th C. Hello, sir. My name is Shubham and I scored 84% in 10th class and I am from Durgapuri, Shabra. From where? Durgapuri. ओके, चलिए. सो बेसिकली आप देखेंगे कि कई लोगों से, कई डिफरेंट रीजन से लोग हैं आपके यहाँ दिल्ली में, कई तरह से. और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. आई गेस मिनिमम आई हैव हर्ड अराउंड 70s एंड अप टू 92-94%. तो आपको बता दूं कि डेफिनेटली जिन्होंने 90 प्लस या 85 प्लस अचीव किया है, दे हैव डन अ गुड जॉब. बट स्टिल आई विल से दैट, सी दिस what you have done in class 10th is in class 10th. Now you people are moving towards the class 11th and there is a huge gap between class 10th and class 11th. अभी तक 10th का सिलेबस बहुत कम होता था, बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते थे. ठीक है, हम उनको तैयार कर लेते थे और हमारे मार्क्स, अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर पाते थे. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आप 11th में आ रहे हैं. 11th में आपका डेफिनेटली सिलेबस बहुत ज्यादा है. दूसरा ये है कि आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं. आप डेफिनेटली क्या हो रहा है कि आप एक डॉक्टर बनने की तरफ अपना एक स्टेप उठा रहे हैं. तो ये इतना आसान नहीं होगा. अब आपको प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी. अब आप ये मान लीजिए कि डेली का डेली आपको कवर करना पड़ेगा. स्पेशली फिजिक्स से काफी लोग करे रहते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रेगुलरली व्हाटएवर आई विल टीच यू इन क्लास, आप जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा, मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट लें.
घर पे जाने के बाद मतलब क्लास खत्म होने के बाद मेक श्योर आप उनको अपनी एक नोट कॉपी में प्रॉपर्ली मेंटेन करें। व्हाटएवर नोट्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको बोल देता हूँ कि सर इसको नोट डाउन कर लो, तो आप कहीं पे भी नोट पॉइंट डाल के आप नोट डाउन कर लिया करो वहीं पर, ठीक है। ये मत वेट किया करो कि सर स्क्रीनशॉट में कुछ नोट्स के बाद ही लिखना है, कहीं पर भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसी सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप जो लेने को बोलूंगा वो आप स्क्रीनशॉट तुरंत की तुरंत क्लास खत्म होने के बाद उनको अपनी नोटबुक में कवर किया करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे मैं अपने आप कुछ पॉइंट्स बोलूंगा और आपको लगेगा नहीं सर दिस इज इम्पोर्टेंट, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। Whatever I will write on the board, you don't need to write it down at the same time while you are in class. At that point of time, you should focus more on understanding the concept, listening to me, whatever I am saying. I spend much time on this understanding part, or you can say that the explanation part. Notes वाला मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे मैं काफी कुछ चीजें लिख देता हूँ, and you have to make your notes at home by taking the screenshot. ठीक है? Whenever you face any kind of doubt, you can just stop me any point of time. Don't wait till I reach the end. जिस स्टेप पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप उसी स्टेप पे आप मुझे रोक दें, मुझे आगे नहीं बढ़ने दें। Don't do that कि सर एक बार मैंने जब पूरा करा दिया उसके बाद सर वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ऊपर से। Never ever do that. जो स्टेप जहाँ पे आपको समझना बंद हो गया बस वहीं मुझे रोक के आप मुझे बता दें, ठीक है। एक और चीज, डाउट पूछने का या डाउट बताने का मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है, ठीक है। मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में बिलीव नहीं करता। व्हाटएवर क्वेश्चंस यू विल बी गिवन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे दिए जाएंगे, एवरी क्लास और एवरी सेकंड क्लास यू विल गेट अ डीपीपी, ठीक है। तो वो डीपीपी के क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, और उनके जो डाउट्स होते हैं वो जनरली हम उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करते टाइम आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप डिस्कशन करें या मुझे पर्सनल लेवल पे भी कभी मैसेज करेंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मेक श्योर केवल आपने अगर क्वेश्चन भेजा यू विल नेवर गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड। आई विल ऑलवेज रिक्वायर योर एफर्ट्स, योर सॉल्यूशन कि आप क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको आपकी गलतियां बताऊंगा और आपको करेक्शन बताऊंगा कि भाई साहब ये गलती की है, अब इसको करेक्ट करो, दोबारा से ट्राई करो, फिर मुझे सॉल्यूशन बताना। मैं कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा बिकॉज आई बिलीव कि सर अगर मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। नेट पे इतना सारा मटेरियल है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के नेट पर सर्च करोगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिसको सॉल्यूशन चाहिए आप वहां से बड़े आराम से सॉल्यूशन उठा सकते हो, बट उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपकी गलतियां जब तक आपको नहीं बताई जाएंगी आप उसमें करेक्शन नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि सर आप गलतियां करें, उन गलतियों को आप मुझे बताएं कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये जो कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ क्या इसकी जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ। मेरा आंसर लाना मेरा धर्म नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरा आंसर आ गया उससे आपका कोई फायदा नहीं है, यहाँ आ जाएगा बट मेन एग्जाम में आपका कभी नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि आप रॉन्ग कर रहे हो या सही कर रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट मेन एग्जाम्स में क्या होता है कि जो रॉन्ग मेथड से आप सही कर रहे होते हो बस वही रॉन्ग मेथड का जो आंसर आ रहा होता है वही आपका पहला या दूसरा ऑप्शन में होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलत किया। तो हिट एंड ट्रायल कभी नहीं करें, हमेशा प्रॉपर मेथड आप अपनाएं। जो मेथड होता है उस मेथड से आंसर गलत है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेथड आपका सही होना चाहिए। आप मेथड कुछ भी लगा रहे हो और आंसर सही आ जाए वो उसको मैं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, उसकी वैल्यू कुछ होती भी नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग ही कॉपी बनाएंगे, उसमें व्हाटएवर एग्जांपल्स मैं आपको क्लास में कराऊंगा उनको आप यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, और घर पे जाने के बाद उनको दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चन को जरूर करेंगे डेली बेसिस पे, और जो भी डीपीपी होंगी वो प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज उसी कॉपी में साथ साथ सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। नोट्स आपने अगर प्रिपेयर कर लिए इट मीन्स ये मान के चलिए कि 50% काम आपका हो गया। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स बहुत परेशान करती है क्योंकि आपके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज है फिजिक्स को लेकर, ठीक है। मैं आपको बताऊं उस मेंटल ब्लॉकेज को हटाने का केवल और केवल एक तरीका है, प्रॉपर डेली बेसिस पे रेगुलरिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप
जो भी पढ़ाया जा रहा है डेली बेसिस पे उसके एग्जाम्पल घर पे दोबारा सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे। आई विल गारंटी कि सर फिजिक्स में आपको डर तो छोड़िए, यू विल एंजॉय डूइंग दिस। ठीक है, आप उसको एंजॉय करेंगे फिजिक्स को सॉल्व करते टाइम। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे लास्ट आते आते 2 साल के एंड में आते आते ऐसे हो जाते हैं, वो रिफ्रेशमेंट के लिए फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सुबह से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 1.5 घंटे 2 घंटे से, आप थोड़ा बोर हो गए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, वो क्या करें, चलो एक काम करते हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स को सॉल्व कर लेते हैं बैठ के। वो रैंडमली पेपर उठाएंगे और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उनका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपको फिजिक्स आएगी। और फिजिक्स कब आएगी, जब आप रेगुलर बेसिस पे उसकी पढ़ाई करेंगे। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, आप मुझे मत बताइए, आप अपने एफर्ट्स को, आप खुद को बताइए क्या आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। जिस दिन आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो गए, उस दिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको हर सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। वरना आप अपने आप को जवाब दीजिएगा, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। जब तक आंसर अंदर से हाँ नहीं आएगा, आप कभी भी आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स तो बहुत दूर की बात है, कोई भी सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर सकते। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, फिजिक्स में आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, उससे स्टार्ट करते हैं। हालांकि चलो चैप्टर 1 में एक चीज मेरे को बतानी है। चैप्टर 1 है, नाम है फिजिकल बॉडी। उससे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताएगा कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, नेचर क्या है, और फिजिक्स को आपने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है। जैसे नेचर की स्टडी को आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हुए, इसके साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, और किस साइंटिस्ट को किस वजह से नोबेल वगैरह मिला है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें दी गई। तो पहले चैप्टर की आप एनसीईआरटी की एक रीडिंग जरूर करें। ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज मिलेगा। थोड़ा फिजिक्स के बारे में या किसी भी साइंस या नेचर के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिलेगी। हालांकि उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो जनरली आपके पूछे जाने के चांसेस फिर भी रहते हैं। एक टेबल बना हुआ है, आप देखेंगे छोटा सा टेबल होगा, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस का। वो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे पहले चैप्टर से टेबल। तो सुनिए, हुआ ये कि सर हमारे पास लाइफ में बहुत सारे फोर्सेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस हैं। अब सबके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो साइंटिस्ट लोगों ने उनको यूनिफाई करने की कोशिश किया। सारे जो फोर्सेस थे उनको कम से कम कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश की। तो उन्होंने पाया कि सर अगर हम सारे फोर्सेस की बात करें तो हम उन्हें 4 मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं, और वो 4 मेजर कैटेगरी हैं बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात करते हैं। चार बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आप कहेंगे सर ग्रेविटेशन फोर्स, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। बाकी लोग प्लीज बताएं जरा स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? आई होप होनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन एल्स? नो सर। मतलब क्लियर नहीं है कि ब्लर नहीं हो रही है? क्या नो सर सर क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर है, सर ब्लर है। एक क्लियर सर। जो क्लियर हो वो यस सर लिख के भेज दें बस। जिनके लिए क्लियर है वो यस सर लिख के भेज दें प्लीज। नो बीच में क्लियर हो रही है सर, बीच में फिर ब्लर हो जाती है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो आई होप काफी लोगों के लिए यस आ रहा है। दैट मीन्स सर मेरे साइड से कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं मेरे पास मैसेज आया था, मुझे मालूम है कि यहाँ से कोई इशू नहीं है। अभी का प्लीज स्टॉप प्रिंटिंग। तो ठीक है, हाँ जिनको बीच में भी ब्लर हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि वो मैक्सिमम आपके एंड पे थोड़ा बहुत इशू होता है। ठीक है, तो मैं हर चीज बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ब्लर, देखिए नेटवर्क इशू आएगा ही आएगा, इंडिया के नेटवर्क आपको सबको पता है। ठीक है, मेरे एंड पर भी कभी कभी जब यहाँ वेदर खराब होता है तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है। टचवुड आज कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आज नेटवर्क एकदम अच्छे हैं। तो आज तो मेरी तरफ से भी फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात, कई लोगों के एंड पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्लर वगैरह 19-20 हो भी रहा होगा, तो मैं हर चीज को बोलता हूँ। हर चीज को मैं जो भी चीज यहाँ लिखूंगा मैं हर चीज को यहाँ बोलूंगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें कि वहाँ बोर्ड पे लिखी हुई कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी।
पहली क्लास है, थोड़ा हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो बी पेशेंट एंड बी काम, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप थोड़ा सा और अगर ज्यादा इशू आ रहा है, दैट मींस यू नीड टू चेक योर नेटवर्क, ठीक है। तो डोंट वरी। अगर बाय चांस आपके एंड पे काफी नेटवर्क इशू की वजह से कोई चीज छूट भी जाती है, तो उसके लिए भी डोंट वरी। हर वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको अवेलेबल कराए जाते हैं लिंक के फॉर्म में। आपकी जो कैलविन की ऐप है उसकी एक्सेस आपको मिलेगी, उसमें आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस की लिंक आपको मिलेगी। अगर कोई पोर्शन मिस हो जाता है तो नोट डाउन कर लो कि सर कौन सा वाला टॉपिक का पोर्शन मिस हो गया था, और एक आइडिया लगा लिया करो कि सर लगभग 1 घंटे की क्लास के बाद मिस हुआ था, आधे घंटे की क्लास के बाद मिस हुआ, उसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। देन रिकॉर्डेड वीडियो में जाके उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप वहां पे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर वो चीज वहां पे क्लियर आ रही है रिकॉर्डिंग में, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सर वो आपके एंड की वजह से ही मिस हुआ होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर कोई चीज मिस भी हो जाए तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो बी पेशेंट, बी काम, हैबिचुअल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कई लोगों के यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, आई नो दैट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन कभी कभी मेरे यहाँ पे भी नेटवर्क, जैसे किसी 2-3 दिन अभी बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो यहाँ मेरे एंड पे भी काफी सारा इशू आ रहा था, बट टचवुड आज वेदर इज वेरी क्लियर एंड नेटवर्क इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि आज पूरी क्लास में शायद ही मेरे एंड से कोई भी इशू आए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड इशू आएगा यार, म्यूचुअल है, कभी आपके एंड पे नेटवर्क इशू आएगा, हर किसी के घर पे इंडिया का नेटवर्क है भाई, है ना। तो डोंट वरी, चलिए। लेकिन अगर मेरे एंड पे इशू आएगा तो सारे लोगों के लिए एकदम से इशू आएगा, ठीक है। तो किसी को भी, आपको एक सिंगल बंदे को भी प्रॉपर नहीं विजिबल होगा और प्रॉपर मेरी आवाज नहीं आएगी, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बोला, इसके बाद मैंने कहा सर दूसरा फोर्स जो था वो था वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। Then is electromagnetic force, and then is strong nuclear force. तो बेसिकली आप बोलते हो 4 फंडामेंटल फोर्स हुए, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सारे फोर्सेस, बाकी सारे फोर्सेस इन 4 में से किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इन चारों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें जो है वो ये स्ट्रॉन्गेस्ट, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आप बोलते हो कि जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है ना। आप बोलते हो यहाँ पे वीकेस्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग ऑल and the strong nuclear force is the strongest among all. जैसे से ऊपर जा रहे हो आप बोलो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ये इससे थोड़ा वीक है, ये थोड़ा और वीक है, ये वीकेस्ट है। अगर मैं बात करूं कि सर ये इसको आप वीकेस्ट मानते हो, मान लो इसकी स्ट्रेंथ को आपने 1 बोला, कितना बोला आपने, इसकी स्ट्रेंथ को 1 बोला, तो ये लगभग 10 की पावर 13 to 16 टाइम्स होता है। देखिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको 1 बोला तो ये लगभग 10 की पावर 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और आगे जाओ तो लगभग ये 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में दिस इज 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और अगर इसकी तरफ जाओ तो लगभग 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीकेस्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी रेंज की अगर हम बात करें, रेंज, तो ये रेंज इनफाइनाइट होती है, रेंज 10 to the power -16 मीटर होती है, और ये 10 की पावर ये इनफाइनाइट होती है, और ये 10 की पावर 16 -16 मीटर होती है। ये रेंज क्या होती है? रेंज से पहले हम बात करते हैं एक्चुअली ये फोर्सेस कहाँ है कर रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने शायद सबने सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एनी 2 मासेस, कोई भी 2 मास ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है, दे अप्लाई एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये एक पेन और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है, कैमरा और हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी 2 बॉडीज हैं वो एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, तो एक तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीकेस्ट ऑफ ऑल है ना, और ये कहाँ लग रहा है, कोई भी 2 मास ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लग रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखिए जब भी वर्ड न्यूक्लियर आ जाए, न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया,
समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो ये दो दोनों में देखिए न्यूक्लियर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस। दैट मींस एक्चुअली दीस टू फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जानते हो ना सब लोग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, ऐसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। Yes, sir. तो है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है या वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इनका कोई भी औचित्य नहीं होता। इनकी जो औकात होती है वो केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है Sir, can you repeat it? मैंने कहा सर ये न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है कि केवल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये, इनके न्यूक्लियस के बाहर आते ही उनकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। न्यूक्लियर विच मींस इनसाइड द न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली फोर्सेज जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सो दो प्रोटॉन प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इन तीनों के बीच ऐसे आपस में लगता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसलिए तो देखिए आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को इतना पकड़ के रखे हुए हैं कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सब भरी हो गए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तभी तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। बट एक न्यूक्लियस का साइज जो होता है उसका रेडियस लगभग 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। इनकी जो वैल्यू है, फोर्स की सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के जैसे ही बाहर आते हो इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं रेंज। इसकी कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सर अगर दो पार्टिकल, जो दो पार्टिकल है लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अगर दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो ये फोर्सेस आपके एक दूसरे पर लग रहे होंगे। अगर आपने दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्टेंस या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन की डिस्टेंस को 10⁻⁻15 मीटर से थोड़ा दूर ज्यादा कर दिया है तो फिर ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे। मतलब इनका जो रेंज है, कितनी रेंज तक, कितनी डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा सकता है, ये फोर्स एक्टिव होता है दो पार्टिकल के बीच में, एंड दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। इससे ज्यादा डिस्टेंस पर अगर दो पार्टिकल हो गए तो फिर उन पे ये वाला फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये चार पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होगा कि सर ये चार पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं और ये इनकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। मतलब आप कितना भी दूर करते चले जाओ, बहुत दूर जाएंगे पार्टिकल, तब जाके इनके बीच में फोर्स लगना बंद होगा। ठीक है, तो आप बोलते हैं इनकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। दिस इज योर रेंज, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत दूर तक एक्ट करते हैं। चार पार्टिकल्स को आप दूर करते चले जाओगे तो भी उनके बीच में फोर्स लगेगा, ऑल्दो फोर्स कम होता चला जाएगा लेकिन फोर्स लगेगा जरूर। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आप बोलते हो कि सर रेंज होती है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। बहुत दूर जाके जब चार पार्टिकल बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर रख दोगे तब जाके आप बोलोगे कि सर ये दोनों चार पार्टिकल्स आपके अब एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर से देखो वर्ड आ गया न्यूक्लियर, जिसका मतलब है ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होगा। एक्चुअली ये न्यूक्लियस के अंदर भी और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगता है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसोन, है ना, पाई मेसोन, लेप्टॉन, ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे बेसिकली आप कह सकते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन के मिले होते हैं, मिलके बने होते हैं और अंदर चले गए। मतलब आप बेसिकली न्यूट्रॉन के भी अंदर चले गए। किसके अंदर चले गए? न्यूट्रॉन के भी अंदर चले गए। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल और क्लोज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? और ज्यादा क्लोज होने चाहिए। इनकी जो रेंज है देखिए कितनी होती है, 10⁻⁻16 मीटर। इससे भी और कम है। मतलब अगर इस डिस्टेंस से ज्यादा दो पार्टिकल दूर चले गए तो ये वाला फोर्स उनके बीच में एक्ट नहीं करेगा। इसलिए इनकी जो रेंज है वो है 10⁻16 मीटर। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि सर अगर इससे ज्यादा हो गए दो पार्टिकल जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, उनकी डिस्टेंस 10⁻16 मीटर से ज्यादा हो गई तो आप बोलोगे कि सर उनके बीच में ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। मतलब बहुत पास से ये दोनों पार्टिकल को अगर ये रिपीट सर, कैन यू रिपीट प्लीज सर? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ऐसे रिपीट नहीं होता बेटा, कोई चीज नहीं समझ में आया वहां टोकिए ना बेटा। रिपीट का क्या होता है? आपको इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? सर एक्चुअली इसमें नेटवर्क एरर आ रहा था तो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बेटा आप मेरी मजबूरी समझिएगा। अगर ऐसे करके अगर यहाँ 25 बच्चे कनेक्टेड हैं, हर 2 मिनट में अगर एक एक बच्चा रिपीट करवाएगा तो मैं एक ही बात रिपीट कर पाऊंगा 2 घंटे में। ठीक है,
तो मेक श्योर ऐसी ऐसी चीजें नहीं करवाएं प्लीज, अदरवाइज मेरी डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं अगर एक ही चीज को अभी मैंने रिपीट किया, थोड़ी देर बाद दूसरे का नेटवर्क गड़बड़ होगा, थोड़ी देर बाद दूसरे का नेटवर्क गड़बड़ होगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस टाइप से चीजें नहीं करने पड़े मेरे को। और अगर काफी पोर्शन आपका मिस हो जाता है तो मैंने आपको दूसरा प्रोसेस बताया है कि हर एक वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप वहां जाके आराम से उस वीडियो के उस पोर्शन को पढ़ सकते हैं। खैर, मैंने बोला कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर लगता है और वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कुछ उनके बीच में लगता है। इसके लिए जो दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो 10⁻16 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इनकी जो रेंज है वो 10⁻16 मीटर। इससे जैसे ही आपकी डिस्टेंस ज्यादा हुई वो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में लगता है सर? दो मास पीसेस के बीच में लगता है। इसके बीच में लगता है, दो मासेस के बीच में लगता है। यहाँ पे रखें तो भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखें तो भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखें तो भी फोर्स लगेगा। आप मासेस को काफी दूर रखोगे तो भी उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा सन और अर्थ कितनी दूर है, the earth and the moon कितनी दूर है, but still they apply gravitational force on each other. That means the range of gravitational force is infinity, मतलब ये बहुत दूर तक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये टेबल आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, आप उस बुक की हेल्प से जो टेबल है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। आपको ये टेबल बड़े आराम से मिल जाएगी। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। चारों फंडामेंटल फोर्स में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है, लगभग इनकी जो रिलेटिव रेंज है, रेंज ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या है, और रेंज कितनी है सारे की, कितनी दूरी तक ये फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। ये वैल्यूज अगर मुझे पता होंगी तो पहले चैप्टर में मुझे इससे ज्यादा और कोई बातें नहीं करनी। जस्ट मेक अ रीडिंग, मेक श्योर आप रीड कर लो। कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं, वो आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूछे मतलब स्कूल वगैरह लेवल पे आपसे पूछते हैं, एंड नीट वगैरह कभी आपसे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बट स्कूल वाले टीचर है कुछ भी पूछ सकते हैं, स्कूल पे डिपेंड करता है। तो वो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिजिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप उसकी एक बार रीडिंग कर लोगे तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई साहब आइंस्टाइन को किस चीज के लिए नोबेल मिला था, सीवी रमन को किस चीज के लिए मिला था, या फिर आप बोलेंगे न्यूटन ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। तो दैट्स इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जो 10 की पावर वाली वैल्यूज है ये अप्रोक्सीमेटली होती है, किसी में थोड़ा बहुत एक पावर ऊपर नीचे लिखा रहता है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, कुछ बुक में कुछ रहता है, कुछ बुक में कुछ रहता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत पावर में ऊपर नीचे हो। खैर, हम बात करेंगे हमारा जो मेन चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज यूनिट एंड मेथड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। एनीवन कोई बताएगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? All those quantities which can be measured directly or indirectly. वेरी गुड। तो बेसिकली ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिनको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और बेसिकली उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब क्या मेजर कर सकते हो? मास की वैल्यू निकाल सकते हो, स्पीड को मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। हम कुछ क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते, हमने कहा हमारे इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते आप,
मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं बोलूँ आज मैं 2 किलो हैप्पी हूँ, कल मैं 3 किलो हैप्पी था, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं सर आज मैं खुश हूँ, कल मैं बहुत खुश था, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। या फिर मैं बोलता हूँ सर मैं आज आधा किलो दुखी हूँ, 2 मीटर दुखी हूँ, है ना। तो आप बोलेंगे सर इमोशंस को आप मेजर नहीं करते, इसलिए इमोशंस वाली क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोलते, ठीक है। अब बात आती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए होती है? 2 वैल्यूज आपको चाहिए होती है। 2 चीज वो क्या क्या है? मैंने कहा सर एक ये क्वांटिटी को क्यूब से रिप्रेजेंट करें, तो आप बेसिकली 2 चीजें बोलते हो। आप बोलते हो एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज होती है यूनिट। इस कंबाइन को आप बोल देते हो मैग्नीट्यूड। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड होती है और एक यूनिट। किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को किसी को मेजर करके देते हो तो ये 2 चीजें आपको बतानी ही पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर ये मेरा मार्कर है, इसकी लेंथ आप बताओगे तो आप क्या बोलोगे? सर लगभग मैंने कहा मेजर की तो बताया 10 सेंटीमीटर, 10 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेंटीमीटर इसकी यूनिट है ना। तो आप बोलते हो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करके आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको कम से कम 2 चीजें बतानी होती हैं। पहली है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है यूनिट, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इनके बिना काम नहीं चल सकता। आप बोलोगे सर बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को बता दो सर इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर है। अरे कितनी सेंटीमीटर है? न्यूमेरिकल वैल्यू बताना जरूरी है। या बिना यूनिट के भी काम नहीं चलेगा। मैंने कहा सर इसकी लेंथ 10 है। अरे 10 क्या है? 10 सेंटीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, वो क्या है? तो आपको उसकी लेंथ आपको बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वांटिटी जब आप देते हो तो 2 चीजें आप जरूर बताते हो। एक बताते हो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी बताते हो उसकी यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मास की बात कर लें तो मास अगर आप बताते हो तो मास मानेगा आपका 10 kg। तो 10 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है इसकी? kg, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अब हुआ ये कि सर हमारे पुराने टाइम में अगर हम जाएं तो कोई स्टैंडर्ड तरीके नहीं होते थे। हमें जनरली मास मेजर करना होता था, लेंथ मेजर करना होता था, टाइम मेजर करना होता था। तो अपने अपन ने सबने क्या कर रखा था, अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने राज्यों में उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ मेजरमेंट के माप तरीके बना रखे थे। फॉर एग्जाम्पल वहां पे फुट में मेजर करते थे कि यार यहाँ के राजा का जो पैर की लंबाई होगी उसको 1 फुट बोल देंगे, है ना। ऐसे ही आप बोलते दूसरे यहाँ के राजा की सर पैरों की लंबाई को 1 फुट वहां बोल देंगे। अब उसमें प्रॉब्लम आती थी कि सर हमारे इंडिया में टिंगे पिंगे राजा हुआ करते थे, हल्के फुल्के छोटे मोटे, है ना। लेकिन अगर हम रोमन और इधर कहीं पे चले, ग्रीस वगैरह में चले जाए तो वहाँ बहुत हट्टे कट्टे तगड़े से राजा वगैरह हुआ करते थे। हमें अगर ट्रेड करना होता था, मान लो हम यहाँ से कपड़ा लेके वहाँ बेचने थे, उन्होंने बोला भाई साहब 10 फुट कपड़ा भिजवा देना। हमने यहाँ 10 फुट मेजर किया, वहां जाके 4 फुट ही निकला। क्यों? क्योंकि उनका 1 फुट बहुत बड़ा था। तो वो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो और हम बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम दोनों ही कॉन्फिडेंट होंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा जैसे जैसे हमारे दो कंट्रीज में आना जाना चालू हो गया तो हमने देखा कि सर ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ फेमस सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, जो एक बड़े रीजन में फॉलो हुआ करते थे। वो 3 सिस्टम जो थे, एक था MKS, एक था CGS और एक था FPS। और भी सिस्टम थे बट ये 3 काफी फेमस थे जो आज तक फॉलो हो रहे हैं। ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ये काफी फेमस थे जो आज तक फॉलो हो रहे हैं। मैंने कहा सर MKS में क्या फॉलो होता था? MKS में फॉलो होता था सर, आप बोलते थे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को kg में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें हम मास को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को kg में मेजर करते हैं के, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को बोलते थे MKS सिस्टम। ऐसे ही दूसरा सिस्टम था, कुछ लोग सर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना प्रेफर करते थे, मास को ग्राम में मेजर करना प्रेफर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करना प्रेफर करते थे। तो वो लोग CGS सिस्टम फॉलो किया करते थे। कुछ लोग अगर US में वगैरह में साइड जाएं तो सर लेंथ को वो फुट में मेजर करते थे, फुट, पाउंड, मास को किसमें मेजर करते थे? पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। आज भी US में ये काफी पॉपुलर है। आज भी US साइड आप जाएंगे, है ना, US UK में ये काफी पॉपुलर सिस्टम है। तो है, मैंने कहा सर ये दिक्कत तो बहुत होती थी, अलग अलग सिस्टम में मुझे कन्वर्जन नहीं पता था, वो फुट में मेजर करके भेजेगा, मुझे मीटर में चाहिए था, ठीक है। तो हुआ ये कि कुछ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला क्यों ना इस
इस संकट से उबरने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और वो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी उन्हीं की कॉपी बना बना के डिफरेंट कंट्रीज में हम भेज देंगे। 1 मीटर इतनी लेंथ को बोला जाएगा, उसकी कॉपी बना के सारी कंट्रीज में हम भेज देंगे। तो जब भेज देंगे तो क्या होगा कि सर वो 1 मीटर सबके लिए कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे 1 kg मास सबके लिए कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक डिसीजन हुआ और एक मीटिंग हुई और उसमें एक सिस्टम बन गया है जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, एसआई सिस्टम, एसआई। जो एसआई सिस्टम का मतलब हो गया स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो एसआई सिस्टम था ये किस पे बेस्ड था, ये एमटीएस सिस्टम पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, एमटीएस पे बेस्ड था। उन्होंने बोला कि सर हम इसी को अपना रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, बट उन्होंने ये चीज भी पाया कि यार केवल यही 3 चीजें मेजर करके काम नहीं चलता, और भी कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे देखा गया तो कई थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी निकली जिनको आपको मेजर करना पड़ता था। अब सबके लिए स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, उसकी कॉपी बना के रखना और संभाल के और दूसरों को भेजना इट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि सर सारी क्वांटिटी में से उन्होंने कुछ क्वांटिटी जैसे चुनी, बोले सर इन क्वांटिटीज को अगर आप डिफाइन कर दो बाकी सारी क्वांटिटीज, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज के टर्म में आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इस सिस्टम ने बोला कि सर क्वांटिटीज को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसमें से एक कैटेगरी थी फंडामेंटल। ठीक है, उसमें पहली कैटेगरी थी फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हीं का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता था कि सर हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज डिसाइड कर दी जो कि आपकी किसी और क्वांटिटी के टर्म में हम उनको डिफाइन नहीं करते, वो खुद के टर्म में डिफाइन होती है, वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, द क्वांटिटीज व्हिच आर यूजुअली, आप इनको कैसे लिखते हो, व्हिच आर यूजुअली not defined in terms of other quantities। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको आप दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। और कुल मिला के 7 ऐसी क्वांटिटीज हमने डिफाइन कर दी और हमने कहा बस 7 के रेफरेंस बना के रख लो, बाकी सारी क्वांटिटीज इन 7 के टर्म में ही डिफाइन हो जाएंगी। क्लियर है, तो आपने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर यूजुअली नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, एंड ऐसी 7 क्वांटिटीज आई और 7 क्वांटिटीज के टर्म में बाकी सारी क्वांटिटीज आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को एसआई सिस्टम बोला जाता है, स्टैंडर्ड सिस्टम बोला जाता है। वैसे तो इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी फ्रांस, पेरिस में। तो आप बोलोगे वहां पे फ्रेंच भाषा में इंटरनेशनल सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता था, एंड दैट्स व्हाई आईएस सिस्टम की जगह पे उसको क्या बोला गया, एसआई सिस्टम बोला गया। उसका नाम क्या हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल। हम तो अगर अपनी नॉलेज नॉर्मल लैंग्वेज में बांटते हैं तो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। कोई मुझसे पूछेगा ये किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे सर इन्होंने एमटीएस सिस्टम को अपना बेस बनाया आउट ऑफ मेनी सिस्टम जो कि अवेलेबल थे। ठीक है, और आपने बोला, उन्होंने बोला कि कैटेगरीज 3 कैटेगरी में उन्होंने क्वांटिटीज को डिवाइड किया। उसमें से पहली क्वांटिटीज थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहली कैटेगरी जो थी, और वो क्या होती थी, द क्वांटिटीज व्हिच आर यूजुअली नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जो क्वांटिटीज किसी और के टर्म में डिफाइन नहीं होंगी, उनको हमने बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दिया। अभी 7 क्वांटिटीज हैं, उनका एग्जांपल हम देखेंगे कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज वो हैं। मतलब ये अपनी, हाँ क्या क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? हेलो
Sir, nothing. Are you there? Is it okay? Is it clear? कोई शंका sir. हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हाँ जी बेटा बताइए। चलिए then. I hope things are clear. Take the screenshot then and we'll move forward. सर इसका जो ये क्वांटिटी है हाँ जी बोलिए। फंडामेंटल क्वांटिटी, सर इसका मतलब क्वांटिटी ये नहीं है है, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कई सारी क्वांटिटीज को उन्होंने फंडामेंटल कैटेगरी है ये बेटा। ओके ठीक सर। है। सर इस मतलब कैटेगरी ये में कई सारी कैटेगरी से अलग है। क्या क्या सर मतलब ये यूजुअली मतलब नॉट डिफाइंड है ना इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। हाँ, हम ऐसी क्वांटिटीज हैं, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया, जो कि हम दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं करते, ये खुद के टर्म में ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, ये कोई एक क्वांटिटी नहीं है, ये कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अंदर 7 क्वांटिटीज आती हैं। यस सर, सर यही पूछना था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपने बोला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and amount of substance. लेंथ को जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट डिफाइन की, देखो लेंथ को आप कई इसमें मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। बट जो एसआई यूनिट बोला गया, जो सिस्टम में स्टैंडर्ड मानी गई, वो मानी गई मीटर। सिमिलरली मास के लिए जो मानी गई वो मानी गई केजी, टाइम के लिए जो मानी गई वो मानी गई सेकंड, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ध्यान रखें केल्विन। अभी तक हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया होगा, बट अब आप ध्यान से रखेंगे कि सर जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। सिर्फ इंटेंसिटी को छोड़ के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के आप सारी क्वांटिटीज टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, या आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ठीक है, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी और क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं होती। जबकि जो दूसरी कैटेगरी होती है जिसको आप बोलते हो डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये दूसरी कैटेगरी है ना। पहली कैटेगरी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी हम उनको डिराइव्ड यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, खैर आप बोलते हैं कि सर ये जो फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? सर which are usually defined in terms of fundamental quantities.
ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करते हो, ऐसी क्वांटिटीज को आप बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच यूजुअली आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं जो कि आप बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल ऐसे हैं, मैंने कहा देखे, जैसे कि बात करते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? लेंथ। टाइम इज टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस आप फंडामेंटल लेंथ में मेजर करते हैं, टाइम एक दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप स्पीड बोलते हो। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखिए, फंडामेंटल के टर्म में डिफाइन किया, इसकी जो यूनिट आएगी, देखो डिस्टेंस को आप बोलते हैं ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम को होते हैं सेकंड, तो आप उसको क्या बोलते हो? मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे सारे एक टर्म में ही डिफाइन हुए हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। यहाँ पे देखिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में मीटर पर सेकंड देखा। मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और मीटर पर सेकंड कॉम्बिनेशन बना तो स्पीड बना, मतलब एक डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, सिमिलरली आप बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे ये सब पढ़ेंगे आप, वैसे 9th में आप पढ़े होंगे आई होप, नहीं तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब अगेन लेंथ होता है, मतलब अगेन मीटर में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसकी भी यूनिट आप निकाल के देखोगे तो इसकी जो यूनिट आएगी वो भी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मैंने कहा सर ऐसे ही आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को आप बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हो गया एक तरीके से। वेलोसिटी में चेंज भी आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे वेलोसिटी की यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इसकी यूनिट निकालोगे तो निकालोगे मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। तो दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आई देखिए मीटर पर सेकंड है, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर इस तरीके से आप फोर्स की निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की आपको पता है सर फंडामेंटल केजी है, और एक्सेलरेशन की अभी आपने निकाल ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर केजी, मास की होगी केजी और इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट आ गई वो क्या आई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसी को आप एक नाम और दे देते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन। क्या नाम देते हो? न्यूटन। तो वैसे तो देखिए ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसी को आपने नाम दे दिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक नया नाम दे देते हो न्यूटन। ठीक है, तो कोई ये ऐसा यूनिट बोले यस दिस इज आल्सो ऐसा यूनिट, और आप इसको बोले न्यूटन को तो यस दिस इज आल्सो ऐसा यूनिट। बस एक नाम दे दिया आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आपने एक साइंटिस्ट का नाम यूज किया और एक यूनिट को नाम दे दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये सारी की सारी डिराइव यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल के टर्म्स में डिराइव की जा रही हैं, and that's why these are called derived quantities, and these are not derived in terms of others. That's why they are called fundamental quantities, और इनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एंड डिराइव क्वांटिटीज को यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव। ऐसी यानी कितनी ही आप ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आप पढ़े हैं और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एनी इशू, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Okay, then take the screenshot.
चलिए, तो ये बातें हुई आपने कहा पहली कैटेगरी थी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी कैटेगरी थी डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने कहा सर एक और कैटेगरी रखा रहता है ऐसी क्वांटिटी जिनको ना तो हम मजबूरी बस फंडामेंटल में रख पा रहे थे और ना ही हम डिराइव्ड में रख पा रहे थे, तो हमने इनके लिए एक नई कैटेगरी बना दी जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो थर्ड कैटेगरी है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं अपन। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज ना हम फंडामेंटल में रखा है ना ड्राइव में रखा है, उनको हमने बोला सप्लीमेंट्री, और ऐसी दो ही क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो अपन तो डायरेक्टली क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। पहली हो गई आपकी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है, तो व्हाट इज प्लेन एंगल? आप बोलते हैं कि सर प्लेन एंगल बेसिकली देखिए ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन जानते हैं क्या होता है? प्लेन, ठीक है, प्लेन होता है बेसिकली एक ये एक प्लेन है, ऊपर रूफ आपका प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका प्लेन है, कोई भी वॉल एक प्लेन है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक 2D सरफेस। क्या है? 2D सरफेस, उसको आप क्या बोलते हो? प्लेन बोलते हो। आप इस प्लेन में जो एंगल ड्रॉ करते, देखो ये दोनों लाइनें एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ सर मैंने एक प्लेन में ही ड्रॉ की हुई है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा। आप इसको आप कैसे देते हो? आपने बोला देखो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, सेंटर पे आप इसको सेंटर मान लेते हो और एक आर रेडियस का, कोई भी रेडियस हो, आर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो? ये आर्क ड्रॉ करते हो। ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, और यहां से यहां ये वाला पोर्शन जो है इसको आप बोलते हो आर्क लेंथ। क्या बोलोगे इसको? आर्क लेंथ। तो जो प्लेन एंगल है थीटा वो कैसे डिफाइन होता है सर? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देखिए लेंथ है, आर्क लेंथ भी क्या है? एक लेंथ है, और रेडियस भी क्या? एक लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई साहब इनकी यूनिट कोई बनती नहीं है ऐसे, बट फिर भी हमने इनकी यूनिट को नाम दे देते हैं रेडियन। क्या नाम देते हैं? रेडियन। जो इनकी रेडियन आपकी जो यूनिट है, ठीक है, इनकी जो ऐसा यूनिट है उनका नाम दे रखा है आपने रेडियन। अभी तक आपने एंगल किसमें ले रखे? डिग्री में, बट एक्चुअली अब आप अदर डाल लीजिए, इवन मैथ्स में भी, अगर मैथ्स आपने ले रखा है और नहीं तो फिजिक्स में, तो अब आप अदर डाल लीजिए, डिग्री विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। डिग्री एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल की वो है रेडियन। ठीक है, तो आपने बोला कि सर इसके लिए तो मुझे रेडियन और डिग्री का रिलेशन पता होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। हाँ सर बिल्कुल आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा जरा बता दो। मैंने कहा देखो अगर ये आर्क लेंथ पूरा एक सर्कल बना ले, मगर ये पूरा आर्क ऐसा होता है कि ये पूरा सर्कल बनता है, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है ये आपको पता है? 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल के बराबर का जो आर्क होता है वो एंगल कितना सबटेंड करता है सेंटर पे? दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं बोलूं आर्क लेंथ पूरा एक सर्कल हो गया तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। आर्क लेंथ हो जाएगा और रेडियस तो आर है ही, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू आएगी 2 पाई ले। बट एक्चुअली जब पूरा सर्कल बनता है तो सर्कल जो बनाता है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? दैट इज 360 डिग्री, दैट वी नो दैट। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो एंगल है वो रेडियन में तो 2 पाई आ रहा है, बट डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री आता है। कितना आता है? 360 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। आप बोलोगे 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? आप बोलोगे 180/पाई डिग्री के बराबर। सिमिलरली आप बोलोगे 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? सॉरी 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? एक सेकंड, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? आप बोलोगे पाई/180 रेडियन के बराबर। हाँ बेटा बोलिए सर। ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर कैसा है? बेटा आर्क लेंथ कौन सा एंगल मेजर करना है पता है आपको? सर कौन सा थीटा। एंगल मेजर करना है? थीटा तो बेटा ये रहा, थीटा की डेफिनेशन तो ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा तो हमने ये डिफाइन कर रखा है, ये है थीटा बेटा।
ये है, जो भी आर्क लेंथ होगा वो आर्क लेंथ रख देंगे, जो भी रेडियस होगा वो रेडियस रख देंगे। हम बात कर रहे हैं पूरे सर्कल के लिए। अगर ये पूरा सर्कल की बात करो, सर्कल आपका सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, आप बोलते हो 360 डिग्री बोलते हो। तो मैंने कहा सर 360 डिग्री बोलते हो, मैंने कहा सर जरा उसको रेडियंस में डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, सर्कल का पूरा आर्क लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी, और रेडियस कितनी होगी आर, तो वो जो एंगल रेडियन में आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन आएगा। डिग्री में वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन निकालना है डिग्री और रेडियन के बीच में, इसलिए हमने इस एग्जांपल को यूज किया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल से हम इनका रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं। अब 1 रेडियन कोई पूछे तो इतने डिग्री है, 1 डिग्री कोई पूछे तो इतना रेडियन है। खैर मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो आपको पता होते हैं, 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, कोई बता पाएगा? राइट एंगल। अरे राइट एंगल को 90 डिग्री को रेडियन में बताओगे भाई साहब? राइट एंगल 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है, तो 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, π/2। वेरी गुड। 180 को डिवाइड किया 2 से तो 90 आया ना, तो पाई को डिवाइड बाय करोगे 2 से तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। सिमिलरली 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, π/3। π/3। वेरी गुड, π/3 रेडियन। सिमिलरली आप बोलोगे 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, π/4। वेरी गुड। सिमिलरली 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, π/6। π/5। 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो आप यूज करते हो, देखिए सबको आप रेडियन में बड़े आराम से कन्वर्ट कर, कोई रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इनको फाइंड आउट कर सकते हो और इतना बार यूज करोगे कि ये याद हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट को रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर्मूला वगैरह भी आप जितने बार क्वेश्चन लिखें उतने बार उस फॉर्मूले को वहां लिखते रहें, आपने आप याद हो जाएगा। कोई भी चीज रट्टा मारने के लिए सिर्फ मल्टीपल टाइम रीडिंग लगाने को होंगे अपने नोट, जितने बार आप अपने नोट्स को पढ़ लो, रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझ के बस पढ़ते जाओ। एक बार रीडिंग मार लो, 7 दिन के अंदर दोबारा मार लो, 1-1.5 महीने बाद दोबारा मार लो, 2-3 महीने बाद सर ये π/4 कहाँ से आया? 45 में 45 डिग्री 180 डिग्री से 45 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, या 90 डिग्री से 45 डिग्री लाने में क्या करना पड़ेगा, π/2। मैंने कहा 90 डिग्री से 45 डिग्री लाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं मैं, हाफ करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। 90 डिग्री को हाफ करोगे तो 45 आ जाएगा। जी सर। तो पाई, यहाँ पे मेरे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक। तो ये π/2 रेडियन होता है 90 डिग्री, तो आप बोलोगे सर इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, π/4। ये यहाँ पे गलती से लिख दिया था, पाई रेडियन तो 180 डिग्री के बराबर है, π/2 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 इज π/2। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। तो ये हो गई आपकी पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल समझते हो क्या होता है? सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड है, 3D है, आप इसको जनरली 2D में ड्रॉ नहीं कर सकते, बट फील दिला सकता हूँ, इमेजिन कर सकते हो। आपने बोला वाटरमेलन सबने खाया होगा, तो वाटरमेलन को आप कट करते हो ना, ऐसे चाकू से लगा के वो कट मारते हैं ना ऐसे करके, और एक पूरा पीस ऐसे निकालते हैं ये करके, तो आपने देखा एक कोनिकल शेप का एक पूरा पीस निकलता है, राइट? तो आप बोलते हो सर ऊपर एक स्क्वायर टाइप का पीस होता है और नीचे जाके एकदम ऐसे जाके कोनिकल शेप में मिल जाएगा। तो स्क्वायर की जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, वो लाइनें अगर आप देखो सेंटर पे जाके मिल जाएंगी, वो चारों लाइनों के बीच में ऐसे सर्कुलर जो एंगल बनने वाला है, 3D बनेगा, उस एंगल को आप बोलते हो सॉलिड एंगल। यहाँ मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लिया कि सर ये एक स्क्वायर है,
याद है, ये एक स्क्वायर है ना, जो आपने पीस कट किया है, ऐसे होता है, बाद में नीचे जाके वो कौन सा बन जाता है। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर ये यहाँ पे इन चारों लाइनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इसी को आप बोलते हो सॉलिड एंगल। सॉलिड क्यों बोलते हो? क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगा। इसमें बनेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में बनने वाला है, 3D है, इसलिए इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा सर इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा? ये तो जहाँ पे चारों लाइनें मिल रही हैं और यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को आप बोलते हो रेडियस। ऊपर वाला ये जो स्क्वायर टाइप का है उसको आपने बोल दिया इसका एरिया, मान लो जो भी ऊपर जो सबसे ऊपर ऐसे स्क्वायर सा दिखेगा उसका एरिया है, और वो स्क्वायर से लेके जहाँ पे जाके वो जाके फाइनली जाके मिल गए चारों लाइनें, उसको आपने वहां से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोल दिया या आर बोल दिया। ठीक है, आप बोलोगे सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे करते हो? सर सॉलिड एंगल को आप डिफाइन करते हो बेसिकली एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सर सॉलिड एंगल को ओम से डिनोट करते हैं। ये ओम नहीं बोलते, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, सिंबल है ये ओमेगा। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम, ओम सिंबल का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे ये सिंबल, जैसे ये रेडियन नहीं है, ये थीटा है, सिंबल का नाम थीटा है। ऐसे ही ये ओम नहीं है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, आप बोलोगे ये ओमेगा है। क्या है ये? ओमेगा है। मैडम आई एम राठौर। हाँ भाई, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी मीटर स्क्वायर में मेजर करोगे, और रेडियस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए लेंथ का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर एक्चुअली यूनिट वगैरह निकालने जाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यूनिट तो मेरे पास वीडियो नहीं आ रही है। आपके पास वीडियो नहीं आ रही है तो मेरे स्क्रीन पे क्लिक करो। आपने पिन कर रखा है मुझे? सॉरी सर, आपने मुझको अपनी स्क्रीन पे पिन कर रखा है? सर फिर साउंड आ मेरी स्क्रीन की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ये तो बताओ मुझे। सर सिर्फ आपकी प्रोफाइल दिख रही है और आपकी आवाज आ रही है। तो इसके लिए बस मैं ये कह सकता हूँ आप एक बार रिज्वाइन कर लो। क्या सर? एक बार डिस्कनेक्ट करके रिज्वाइन कर लीजिए, आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा। आई एम सॉरी, आपके नेटवर्क का इशू हो रहा है। बाकी लोगों को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो या तो आपने मुझे अनपिन कर रखा है, तो आप एक बार देख लीजिए आपने क्या मेरी स्क्रीन को ही पिन कर रखा है, या फिर आपके नेटवर्क के एंड पे कोई इशू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको शायद इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा नेटवर्क बेटर कर लो। चलो क्या क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड एंगल को एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया को भी आप मीटर स्क्वायर में मेजर करोगे, आर स्क्वायर को भी आप मीटर स्क्वायर में मेजर करोगे, तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यूनिट को निकल लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको फंडामेंटल ड्राइव में किसी में नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए हमने क्या बोला कि सर इसी को एक ऐसा यूनिट दे दी जिसका नाम दे दिया इससे दे दिया, इसका नाम दे दिया इसके दे दिया, जैसे इसका नाम रेडियन दिया था वैसे इसके नाम का रेडियस दे दिया। इस सॉलिड एंगल को आज सच हम यूज नहीं करने वाले कभी भी। ठीक है, हमारे लेवल में, हमारे कह सकते हो कि स्टैंडर्ड में ये कहीं हम इसका यूज नहीं करने वाले। हाँ, प्लेन एंगल हम भर भर के यूज करेंगे, प्लेन एंगल हम भर भर के यूज करने वाले, इसलिए कन्वर्जन में हम बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब आप बोलिए और मेरे से आंसर लीजिए, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी किसी भी तरीके कोई भी परेशानी? नो सर। क्लियर है सारे लोग? यस सर। चलो दो छोटे छोटे कन्वर्जन देख लेते हैं, बाकी आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने एग्जांपल 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो।
और 5/4 को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ये सारे आंसर निकाल लो और फिर मुझे बता दो। जहाँ डिग्री लिखा है उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जहाँ रेडियन लिखा है उनको डिग्री में कन्वर्ट। सर पाई का वैल्यू क्या होगा बेटा? वैल्यू डालना है। कैसे आंसर पाई कैसे आंसर देना चाहते हो? नहीं, पाई को पाई के टर्म्स में देना है। ओके हाँ थैंक यू। Yes, got the answers? चल मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के शायद आंसर्स आ भी गए होंगे, कुछ लोग के नहीं आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ जरा। सर लास्ट वाले का 135 डिग्री। हाँ जी, वेरी गुड। 30 डिग्री को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 आ जाएगा। तो रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? पाई बाय 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 270 डिग्री इज 90 into 3. 90 डिग्री into 3 is 270 डिग्री। तो 90 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब पाई बाय 2 को, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 रेडियन। 5/2 सर नेक्स्ट वन का 240 डिग्री। कितना? ये 40 डिग्री पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 रेडियन किसके बराबर था? 60 डिग्री के। तो 5 into 60 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। 300 डिग्री। क्लियर है? 3 into पाई बाय 4। पाई बाय 4 किसके बराबर था? 45 डिग्री। 135 डिग्री। 45। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 45 में 135 रेडियन। 135 हो जाएगा। 125 नहीं, 35। क्लियर है ये बातें? नहीं कोई दिक्कत किसी को भी, किसी भी एग्जांपल में कोई दिक्कत हो? नो सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहला चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत स्कोरिंग है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देके जाता है नीट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन? किसी भी टाइप का, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नो सर। घर पे जाके जितने भी एग्जांपल्स आज मैंने कराए हैं, जितनी भी यूनिट्स मैंने निकलवाई हैं ड्राइव यूनिट, घर पे जाके एक बार जरूर ट्राई करेंगे। सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे अलग से कॉपी पे और नोट्स जरूर मेंटेन करें। ठीक है, चलिए देन आज के इतना ही काफी है। थैंक यू। सर 1 सेकंड सर, एसएस ले रहा है सर। बोलिए क्या? स्क्रीनशॉट ले रहा है सर। अरे इतना देर में स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ले जल्दी से। थैंक यू सर। ले लिया सर, थैंक यू सर। ओके।